Everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9.11 and we are related with cost of capital. And earlier we have described whatever the amount which is invested by organization, proprietor or partners into the business, that amount is considered as capital. So we are going to calculate cost of capital in these chapters. But before that, we have discussed several types of capital financing. The very first word which we should have an understanding is capital, and capital is any amount which is invested by the proprietor, partners or organization, and they have invested that amount into the business. This is called capital. And different sources we have already discussed. Two major sources with which you can finance your business is, at first side, is debt financing, and secondly equity financing. We have already discussed it. Debt financing means the amount which is being invested by the proprietor is not actually his own amount. That amount is taken from any other institution as a loan. Maybe the loan has been taken from a person, and that loan amount इज़ बीइंग इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस. एक प्रोप्राइटर है, वो किसी और इंस्टीट्यूशन से जाके, चाहे वो बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से वो पैसे एज अ लोन रिसीव करता है और सेम अमाउंट ही इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन द कंपनी इन हिज ओन बिजनेस. अब वो इसको आपने डेट फाइनेंसिंग का नाम देना है कि पैसे ज़रूर फाइनेंस हो रहे हैं, स्टिल इट इज़ योर कैपिटल, बट फाइनेंसिंग इज़ फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द लोन. और दूसरा ये है कि इफ़ प्रोप्राइटर इज़ इन्वेस्टिंग ऑल द अमाउंट विद इन हिज ओन रिसोर्सेज, दैट वुड बी कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग. और हम जो एक्चुअली कैपिटल की डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों की अपनी कॉस्ट है. डेट फाइनेंसिंग हैज़ इट्स ओन कॉस्ट, इक्विटी फाइनेंसिंग हैज़ इट्स ओन कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों सूरतों में निकलेगी, बट द वे टू कैलकुलेट डेट फाइनेंसिंग इज़ डिफरेंट with the way as we will make a comparison with the cost of capital through equity financing. दोनों का मेथड डिफरेंट है. अच्छा, अब यहाँ 9 क्वेश्चन के अंदर देर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्टिंग दिस कैपिटल. उसी को आगे लेकर हम चल रहे हैं. इक्विटी फाइनेंसिंग में फिर दोबारा से आगे डिफरेंस क्रिएट हो सकता है. सबसे पहले तो अगर जो पार्टनर्स हैं, जो प्रोप्राइटर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, ये तीनों तरह की कैटेगरी के अंदर हम डीप डिस्कशन नहीं करेंगे. बस सिंपल आप इतना बात समझिए कि अगर इफ़ इट इज़ प्रोप्राइटरशिप, यानी देर इज़ ओनली सिंगल ओनर, द अमाउंट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द सिंगल ओनर वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल. इफ़ अमाउंट इज़ टेकन फ्रॉम डिफरेंट पार्टनर्स, अगेन इट्स अ कैपिटल. इफ़ अमाउंट इज़ टेकन फ्रॉम सेवरल इन्वेस्टर्स like in public limited company, so there are hundreds and thousands of investors, they have invested their amount into the organization, again it's a capital. So little bit difference is what, first, if amount has been taken from hundreds and thousands of persons and they were invited through stock exchange and it's a public limited company, and capital has been taken from those persons those investors who were present in the stock exchange. Even sometimes you haven't seen, organization haven't seen the face of that investor, कभी शक्ल भी नहीं देखी होती, लेकिन वो चूँकि एक स्टॉक एक्सचेंज जगह है जहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं और वहाँ पे वो इन्वेस्ट करके चले जाते हैं. ऐसी सारी इन्वेस्टमेंट्स को आपने कॉमन स्टॉक बोलना है, कॉमन कैपिटल बोलना है, कॉमन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं. बहरहाल फ़िलहाल चूँकि ये अमेरिकन एडिशन है तो यहाँ पे कॉमन स्टॉक यूज़ होगा, कॉमन कैपिटल भी इसी को ही बोल सकते हैं. अच्छा जी, दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें कि कॉमन स्टॉक आपके पास कुछ पब्लिक है, दे हैव इन्वेस्टेड देयर अमाउंट इनटू द बिजनेस. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग you will have to connect with the common stock is, if organization after their investment, if they are earning profit, the part of profit would also be distributed to these common shareholders. जब आप मुनाफा कमाएंगे तो इन शेयर होल्डर्स को, जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं, उनको आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना होता है. And let's say if instead of profit company is facing loss, even then these common shareholders will participate in sharing these losses as well.
अगर प्रॉफिट हुआ तो भी हिस्सेदार, लॉस हुआ तो भी हिस्सेदार. नाउ देर इज a different category of investors, though you are taking amounts from different public ways, but you had made a little different process. Second में भी आप पब्लिक के तरीके से ही पैसे लोगों से ले रहे हैं, लेकिन उनसे प्रॉमिस डिफरेंट कर रहे हैं. इन कॉमन स्टॉक what promise has been made, if company is earning profit, a part of that profit will surely be distributed to these shareholders, and if there is loss will also be shared by common stockholders. चाहे फ़ायदा हो कॉमन स्टॉक वाले हिस्सा डालेंगे, चाहे लॉस हो कॉमन स्टॉक वाले हिस्सा डालेंगे. अब दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं. अब इनके साथ आप डिफरेंट डील कर सकते हैं. हो सकता है कि उनके पास किसी चीज़ की वो एक्सपर्ट है, लाइक वो परचेज़ अच्छा करना जानते हैं, वो सेल अच्छा करना जानते हैं, वो मार्केटर्स हैं, या वो सेलिब्रिटीज़ हैं. तो आप अगर उनका नाम अपनी कंपनी के साथ जोड़ेंगे तो यू विल गेट सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स. तो प्रेफर्ड स्टॉक के साथ कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन हम चूँकि फाइनेंस से एसोसिएटेड हैं तो वी विल बी कंसंट्रेटिंग विद द फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस. कॉमन स्टॉक के बारे में दोबारा सुनिए क्या. इफ़ देर इज़ प्रॉफिट विल बी शेयर टू द कॉमन स्टॉक होल्डर. इफ़ देर इज़ लॉस विल ऑल्सो बी शेयर्ड बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स. लेकिन अब जिस पब्लिक से आप पैसा ले रहे हैं, यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस, इफ़ देर विल बी अ प्रॉफिट, श्योरली दैट प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफर्ड स्टॉक ऑलवेज. और साथ में अगर लॉस होता है तो यहाँ ये भी हो सकता है. बहुत अलग अलग कंडीशंस आप प्रेफर्ड स्टॉक से बना सकते हैं. अब प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को आप बोल सकते हैं इफ देर इज लॉस, ओके, यू आर नॉट गोइंग टू शेयर द लॉस, यू विल ऑलवेज बी पार्टिसिपेटिंग विद प्रॉफिट एक्टिविटीज़. अगर नुकसान हुआ तो चलें ठीक है, आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, हाँ फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे. ये एक मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. इस तरह से आप कोई भी डील प्रेफर्ड स्टॉक से कर सकते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मे बी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मे बी रेपुटेशन और गुडविल बेनिफिट्स यू आर टेकिंग फ्रॉम दो सेलिब्रिटीज़. कुछ भी अलग हो सकता है, बस समझना ये है कि इट्स नॉट द सेम थिंग. कॉमन स्टॉक प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के साथ, प्रेफर्ड स्टॉक ओनली प्रॉफिट शेयरिंग. अच्छा जी, इसके बाद एक तीसरी वर्डिंग भी आपने समझनी है, दैट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. अब ये क्या चीज़ है. अगर लेट्स से यू एज अ ऑर्गेनाइजेशन, you are running an organization and you have earned profit, and obviously after earning that profit you are responsible to distribute that profit among shareholders, no matter these are common shareholders, no matter these are preferred shareholders, but you are responsible to distribute some part of प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स. अब ज़रा ध्यान से समझिएगा. अगर लेट्स से 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, अब कुछ पार्ट आपने कॉमन को देना है, तो 20 रुपीज़ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कॉमन शेयर होल्डर्स, 20 रुपीज़ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स. अभी ये मत जानिएगा कि 20 क्यों, 30 क्यों नहीं, या 10 क्यों नहीं. Just consider to understand what are retained earning. Total profit you have earned was ₹100, 20 rupees given to common stockholder, or 20 rupees you have given to preferred stockholders. How much profit is still in hand? Out of 100, 20 means 40 you have distributed among common and preferred shareholders. Remaining profit is 60, and you are not going to distribute this profit to anyone else. अब ये 60 रुपये जो आपके पास ही रह गया प्रॉफिट, इट इज़ कॉल्ड रिटेन अर्निंग. और ऑब्वियसली आप इन रिटेन अर्निंग्स को आइडल तो नहीं छोड़ेंगे, तो आप इनको दोबारा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर, और बिजनेस ग्रो करेगा, और इसकी एक अलग कॉस्ट है. अब आप ज़रा व्यू कर लीजिए. वी वर डिस्कसिंग कैपिटल, एनी अमाउंट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, which is invested by the proprietor, partners or shareholders in the business is called capital. When the amount has been taken as a loan from investors, it is called debt financing, and when they are participating in the business activities, it is called equity financing, when you are arranging your amount by yourself. If proprietor, partners or investor, they are paying this amount as partners, not as loan, that is called equity financing. And there are three types of equity financing we had discussed: common, preferred or retained earning.
Common from anyone you can take the amount and they will share profit loss. In preferred stock there will be a different dealing, they are getting profit, but in case of loss it might be something else. Retained earning means amount of profit which is distributed among common and preferred shareholders and still there is a profit in your hand is called retained earning. अब यहाँ पर मैं एक टर्म आपके साथ और शेयर करने लगा हूँ, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. ये डिविडेंड क्या चीज़ होगी फिर? डिविडेंड इज द अमाउंट which is part of profit and distributed among common, preferred or retained earnings. Dividend is total profit. If let's say you have got 100 rupees profit, what we were saying, 20 rupees you have given to the common stockholders, 20 rupees you have given to preferred stockholders. So what you have done, you have distributed some part of profit among shareholders. It is called dividend. चलिए मैं लिख भी देता हूँ, part of profit which is distributed among shareholders. Part of profit which is distributed among shareholders. तो वो शेयर होल्डर तो कॉमन भी हो सकते हैं, प्रेफर्ड भी हो सकते हैं, और रिटेन अर्निंग हमारे पास ही जो पैसे पड़े हुए हैं, वी आर इवन रिस्पॉन्सिबल टू पे प्रॉफिट अपॉन दोज रिटेन अर्निंग्स एज वेल. उनकी भी एक अलग कॉस्ट होती है. ज़रा क्वेश्चन की शक्ल देखिएगा, हमने इस वक्त क्या चीज़ डिस्कस करनी है. हम चूँकि 9.11 डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने यहाँ सिर्फ रिटेन्ड और कॉमन को डिस्कस करना है. तो कुछ वक्त के लिए आप ये ऊपर वाली सारी चीज़ों को अलहदा कर दीजिए और आप दो चीज़ों के साथ हैं. एक आपने कॉमन स्टॉक को डिस्कस करना है और एक आपने रिटेन्ड अर्निंग को डिस्कस करना है. फ़िलहाल आपके क्वेश्चन के अंदर प्रेफर्ड स्टॉक नहीं है. यू आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन एंड रिटेन्ड अर्निंग जस्ट. अब यहाँ पर आप इनको समझने के लिए फिर अब इनके फॉर्मूलाज हैं जिससे आप कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे. पहली बात तो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है समझ आना चाहिए कि कॉमन स्टॉक क्या चीज़ है और इसके साथ जो रिटेन्ड अर्निंग है वो क्या चीज़ है. और मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बट रिटेन्ड अर्निंग इज स्टिल इन योर हैंड, द अमाउंट विच इज़ स्टिल इन योर हैंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. लेकिन अगर रकम आपने अपने पास रखनी है तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी. आपको देखें, ये बात आपको अजीब लगेगी कि जो पैसा आपके हाथ में ही है, जैसे आपको अगर पॉकेट मनी मिली 1000, उसमें से कुछ पैसे तो आप खा गए, 20 करके कुछ पैसे खा गए. जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं आप समझ रहे होंगे उसकी क्या कॉस्ट है, वो तो हमारे पास ही पैसे हैं. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एज अ बिजनेस मैन, आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है एज अ बिजनेस पर्सन. आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है. इफ़ देयर इज़ रिटेन्ड अर्निंग, इट मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, इट मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रॉफिट, इट मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर अर्निंग्स. अगर आपने इसको दबा के रख दिया और उससे कोई अर्निंग नहीं कर रहे तो ये आपको कॉस्ट पड़ेगी इसकी. तो काइंडली इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिएगा. अच्छा, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, एंड दिस इज़ द स्पेसिफिक थिंग विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड डिविडेंड. तो आपने इसको अगर कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक को, तो आपके पास दो चीज़ों की ज़रूरत है. एक आपके पास अमाउंट ऑफ डिविडेंड होनी चाहिए और डिविडेंड की रेशो गिवन होगी, बस आपने कैलकुलेट करना है. सबसे पहली चीज़ आपके पास डिविडेंड हो और नीचे आपने नेट सेल वैल्यू को कंसिडर करना है. अच्छा, अब सेल वैल्यू से क्या मुराद होती है इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा. अगर आपने लेट्स से यू हैव गिवन योर शेयर्स टू द कॉमन शेयर होल्डर, आप गए स्टॉक एक्सचेंज में, यू हैव प्रेजेंटेड योर सेल्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव ऑफर्ड एनी वन हु इज़ इन्वेस्टिंग, यू विल बी गिविंग हिम सम प्रॉफिट और डिविडेंड. अब इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैविंग गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, पीपल विल इन्वेस्ट, पब्लिक विल इन्वेस्ट. लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में अब यहाँ पर क्राइटेरिया होगा कि वो क्यों आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दें इन्वेस्टमेंट के तौर पे. जैसे आपका एक ग्रुप बना,
आपकी क्लास में 4 लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक प्रोजेक्ट बनाया, बट यू वर नॉट हैविंग सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यू हैव गॉन टू द स्टॉक एक्सचेंज, प्रेजेंट योर सेल्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, नाउ यू आर विलिंग टू गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक। आप चाह रहे हैं पब्लिक आपको पैसा दे दो। पब्लिक आपको क्यों पैसा देगी? तो वो देखेगी कि इफ़ अमाउंट इज सेफ in this organization, public will view how much rate of profit is being offered by your organization, कितना प्रॉफिट है, कितना सेव है। तो वो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वीक होगी, आप उससे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं 100 रुपये की, वो कह रहा है कि हम आपको 90 रुपीज़ पकड़ाएंगे मगर समझेंगे कि ये 100 रुपये आपके पास किया है। इसका मतलब है रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वीक, they are not ready to invest in your company. So what they are saying, they are bargaining with yourself, और आपके जो शेयर की या आपके कारोबार की प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। अगर लेट्स से योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैविंग वेरी गुड रिप्यूट, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, अब जब आप ऑफ़र करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके, तो देयर वर सो मेनी पीपल, अ लॉट ऑफ पर्सन्स, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, दे विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ सेलिंग दैम योर शेयर ऑफ ₹1000 for 1000, what you will do? You will announce that price of one share would be written upon share 1000 rupees, but we will sell that share, we will issue that share for rupees 1200। 1000 रुपये का शेयर है, लिखा भी 1000 होगा, but we will be issuing that share for rupees 1200। अब मुझे ज़्यादा पीछे ना जाना पड़े, शेयर क्या होता है समझेंगे, खाली पेपर होता है जो आपने लिख कर एक्सेप्ट किया होता है कि somebody had invested in your organization। Just consider it as a paper. That paper will be delivered to the investor upon which amount of investment would be written. So what I had said, amount of investment, face value of that share has been written as 1000, and you have sold or issued that share to the public, and instead of receiving 1000 you are receiving 1200। ये ऐसे ही है कि 1000 रुपये की चीज़ आप किसी को दे रहे हैं और उसके बदले में उससे 1200 दे रहे हैं, 1200 ले रहे हैं। तो 1200 कोई क्यों देगा? जब आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, जब आपका रेट ऑफ प्रॉफिट वुड बी वेरी फ्रूटफुल, वेरी अट्रैक्टिव, एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ 100% secure, and the promise you are making to provide profit is very strong, then public can give you amount more than that of face value। तो अब ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपने समझ के रखना है, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जब फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा हो, यानी इशू करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हो, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया हो, वो बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो तब इसकी सेल वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकता है। जब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है तो उसके बाद आपने इनमें प्लस करना है ग्रोथ रेट को। ओके, मैंने कुछ एडजस्टमेंट कर दी सो दैट कुछ मेस ना क्रिएट हो और आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ रही हो। सो व्हाट वी वर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, इसके लिए आपने डिविडेंड को नेट सेल पे डिवाइड करना है और देन यू विल ऐड व्हाट, ग्रोथ रेट को आपने ऐड करना है। और एक्सेल के अंदर डायरेक्ट प्लस नहीं लिख सकते इसलिए मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ। सो ग्रोथ रेट वुड बी एडेड इन दिस। ये जो एक कंप्लीट फार्मूला है और व्हाट वी आर डिस्कसिंग इट्स अ फार्मूला यूज फॉर कॉमन स्टॉक, इसको हम अलहदा करते हैं और ये कंप्लीट एक फार्मूला कंसिडर करना है आपने। ओके गाइज, एक तो अजान थी और दूसरा मैंने कुछ एडजस्टमेंट इधर कर दी हैं। पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूला को अच्छी तरह से समझ लें। कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, डिविडेंड ओवर नेट सेल। Okay, what I was saying, dividend is to be divided by net sale value, and you will add a growth rate with the answer of when you will get dividend divided by net sales। डिविडेंड और नेट सेल को डिवाइड करना है, एक आंसर आएगा, उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देना। अच्छा, दूसरी चीज़ जिसको अंडरस्टैंड करना है वो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक इन दिस क्वेश्चन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेट फाइनेंसिंग इन दिस क्वेश्चन, वी आर रिलेटेड विद कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब यहाँ पर जो आप इधर लिख रहे हैं डिविडेंड ओवर नेट सेल्स और ग्रोथ रेट, यहाँ पर भी आप डिविडेंड लिखेंगे सेम, और फिर डिवाइड भी आप सेल्स पर करेंगे, बट व्हाट यू विल डू, यू विल राइट ग्रॉस सेल्स ओवर हियर, और फिर इसमें यू विल ऐड ग्रोथ रेट।
सो व्हाट डज दैट, ये देखें ग्रोथ रेट हुआ ना, तो उसने इसको फार्मूला अंडरस्टैंड किया, इसलिए ब्रैकेट लगाई है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस। ग्रोथ रेट, ओके। अब इस दोनों फार्मूलाज को अगर आप गौर से देखेंगे तो फिर डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों फार्मूलाज में। यहाँ पर भी डिविडेंड और उधर भी डिविडेंड है, यहाँ पर भी ग्रोथ रेट है, सेम ग्रोथ रेट उधर है, इधर नेट सेल है, इधर ग्रॉस सेल्स है। ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स, ये आप सेल प्राइस ये ना समझिए कि यू आर सेलिंग समथिंग, यू आर इशूइंग समथिंग। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि जो सेल वैल्यू है इट इज़ इशू प्राइस, जस्ट कंसिडर इट। आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे सेल प्राइस लिखा हुआ है, जो सेल वैल्यू है वो इशू प्राइस है। अच्छा, अब ये सेकंड जो फार्मूला है ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का है, इसको हम अलहदा कर देते हैं। और आप दोनों फार्मूलाज को अब आपने बहुत अटेंटिव होके समझना है, चाहे थोड़ा सा टाइम ले लें, वीडियो स्टॉप कर दें और दोनों फार्मूलाज को अच्छी तरह से आप समझ लें। कॉमन स्टॉक के अंदर और ग्रॉस सेल्स में और नेट सेल्स में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको पता है। लेट्स से आपके व्हेन एवर यू आर इशूइंग योर चेक बट गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड सम टैक्सेस और सम कॉस्ट ओवर हियर, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जो सबसे पहली मरतबा शेयर्स आप लोगों को दे रहे हैं, शेयर्स क्या, खाली पर्ची है जिस पे लिखा होता है कि वी हैव रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम यू एंड वी आर रेडी टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट इनटू आवर बिजनेस and you will get certain rate of profit when the organization is earning profit। अच्छा, अब यहाँ पर वो जब शेयर उसको दे रहे हैं, अगर उसके ऊपर कुछ कॉस्ट आ रही है, 100 रुपीज़ का फ़र्ज करें शेयर है और कॉस्ट 20 है, तो ग्रॉस सेल्स में वो कॉस्ट नहीं माइनस करनी, नेट सेल्स के अंदर बस माइनस करनी है। ग्रॉस सेल्स का मतलब एज इट इज़ आपने ऊपर लिखते जाना है और कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, ये मैं इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि हम इस चीज़ को आगे चलकर कोई 10 क्वेश्चंस चलेंगे और वी विल कंटिन्यूसली बी डिस्कसिंग कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर अगर टाइम ले रहा हूँ तो फिर उसका मतलब है कि दोबारा हमें इन चीज़ों की डिस्कशन कम करनी पड़ेगी। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम, और क्वेश्चन के अंदर वी हैव 4 फर्म्स, ये अलग-अलग फर्म्स हैं। लेट्स से आप ही में से एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, सी है, डी है, दीज आर 4 डिफरेंट फर्म्स और ऑल फर्म्स आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। यहाँ से प्लीज़ रीडिंग कीजिएगा। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल प्राइस है दैट प्राइस हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर हियर। मार्केट प्राइस इज ओरिजिनल प्राइस। अभी अगर इफ़ यू आर इशूइंग योर शेयर टू द पब्लिक, द ए कंपनी कैन issue their share for ₹50, B is little less which is 20, C is 42.5 and D is 19। तो अब A और C कंपनी थोड़ी बेहतर है, they can issue their shares in proper prices और जो बाकी की 2 कंपनीज हैं उनकी ज़रा कम प्राइस है। हमने इस वक्त पहले जो सॉल्व करना है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इस पर आप फोकस रखिएगा और इसमें आपने ख्याल रखना है कि ग्रॉस सेल्स है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ है जिससे आप एसोसिएट हैं, कौन सी चीज़ आपसे एसोसिएटेड नहीं है। सो आई हैव सेड व्हेन इट इज़ ग्रॉस सेल्स यू आर नॉट गोइंग टू डिडक्ट एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट नहीं आपने लेस करनी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपके सामने हैं, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, अंडर प्राइसिंग वेर यू विल डिक्लाइन द प्राइस एंड देन द फ्लोटेशन कॉस्ट, और जो एक्चुअल इस वक्त मार्केट प्राइस है वो ग्रॉस आपके सामने पड़ी हुई है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लेस की हुई, दैट इज़ 50 फॉर फर्म ए। इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस इशूइंग प्राइस या मार्केट प्राइस या ग्रॉस सेल प्राइस इज़ 50 फॉर फर्म ए। और व्हाट यू विल डू, you are not connected, what I have said, not, you are not connected with these costs, flotation cost or underpricing. If you will not deduct, it means it is gross sales। अब आपको जो अपने क्वेश्चन के लिए चाहिए, सबसे पहले डिविडेंड की अमाउंट चाहिए और सरप्राइजिंगली हेयर यू हैव गॉट द डिविडेंड अमाउंट। यहाँ पर डॉलर लिखा हुआ ना साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिविडेंड की अमाउंट है, कैलकुलेट हो गया, ये परसेंटेज नहीं है, तो यू आर नॉट नीडेड टू अप्लाई दिस परसेंटेज अपॉन फेस वैल्यू। चलें, अच्छा हुआ मेरे सामने बात आ गई। आपने जब भी डिविडेंड कैलकुलेट करना है प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, वेन एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट डिविडेंड, सो वट यू विल डू, यू विल चूज़ फेस प्राइस, ओरिजिनल प्राइस,
ग्रॉस प्राइस, ग्रॉस सेल्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने परसेंटेज से जो डिविडेंड का है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, इस तरह से लिख के ये फार्मूला आपने जेहन में रखिएगा। बट इन आर क्वेश्चन डिविडेंड इज ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड, वी आर नॉट नीडेड टू अप्लाई। जैसे आप किसी जगह इन्वेस्ट करें, वो आपको कहते हैं जी मैं 10% प्रॉफिट दूंगा आपको, तो हेयर परसेंटेज इज नॉट मैंशनड, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज मैंशनड। और पहली जो इन्वेस्टमेंट, पहली जो फर्म है, दे हैव अनाउंस अ डिविडेंड ऑफ ₹2.25। फार्मूला में वापस आए, आपको क्या चीज़ चाहिए थी? डिविडेंड चाहिए थी, ग्रॉस सेल्स चाहिए थी, दोनों चीज़ें आपको मिल गई हैं। मैं पुट करता हूँ इधर। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर फार्मूला थोड़ा स्मॉल करके लिखने लगा हूँ। आपको डिविडेंड चाहिए, फिर आपने इसको यहाँ पर ये इज इक्वल टू, मैं हटा देता हूँ, फार्मूला तंग कर रहा है। तो डिविडेंड को आपने डिवाइड करना है सेल प्राइस पर, और जो इसका आंसर आया होगा उसमें प्लस करना है ग्रोथ रेट, उसको जी, आपका नाम जी रख लेते हैं। ओके, अब इसमें डिविडेंड खुद ही कैलकुलेट करके उसने दिया हुआ है, फर्स्ट डिविडेंड इज़ व्हाट 2.25। तो आप क्या करेंगे, 2.25 को आप यहाँ रखें, और उसके बाद इसको आपने डिवाइड करना है किससे? सेल प्राइस पे। चेक कीजिए सेल प्राइस जो ओरिजिनल इशूइंग प्राइस है वो भी आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ 50। इसको 50 पे आप डिवाइड करेंगे, और व्हेन यू विल गेट द आंसर बाय डिवाइडिंग 2.25 विद 50, आंसर विल बी एडेड विद द ग्रोथ रेट। एंड हाउ मच इज़ ग्रोथ रेट? Here it has been mentioned, check it out. This is your growth rate, and for first firm growth rate is 8%. You may write 8% over here, or you may write instead of percent. What does that mean? 8%, 8 divided by 100, and you may write 0.08. This is what you are going to calculate for first firm, firm A. ओके, और अब इसकी आप कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। एक्सेल विल हेल्प अस। ब्रैकेट ओपन, जस्ट फोकस व्हाट इज़ रिटर्न अबव। मैंने जहाँ पर ये ब्लू स्केयर है, जस्ट कीप योर फोकस above of this blue square. What you are looking at is 2.25, and you are going to divide it by 50, and you have got the answer, and then you will get 0.08. Here you have your answer 12.5। और आप इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके सामने परसेंटेज आ जाएगी। इधर लिखना है तो टाइम्स लिख दें, और इधर लिखना है परसेंटेज के साथ। तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस आंसर विद 100। मल्टीप्लाई करना था, तो दिस वे फर्स्ट आंसर इज़ योर 12.5। ये आपने फर्म ए के साथ अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली है, और इसी तरह से अब आप फर्म बी के साथ चलते हैं, और फर्म बी में सेम ऐसे करते रहना। वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये एक हो गया, अब इसके बाद बाकी सब कुछ आपको खुद करना चाहिए। फार्मूला आपका क्या है, हर दफ़ा हम रिपीट करते रहते हैं, सो दैट जितनी दफ़ा रिपीट होगा आई थिंक दैट वुड बी इन फेवर ऑफ यू। डिविडेंड, इट शुड बी डिवाइडेड बाय सेल्स, बट ग्रॉस सेल लिखना ज़्यादा बेहतर है। ग्रॉस सेल्स, एंड यू विल ऐड ग्रोथ रेट। फर्म बी के पास चलते हैं। Here is your firm B, and dividend amount is 4, so you will write 4 in place of dividend. Next you are needed to divide it with gross sales. Come over here and see how much amount is for gross sale of B. It is 20. Write down 20, brackets closed, and you are needed to add growth rate. What is growth rate? For second firm it is 4. Since it's a rate, you will have to show it in a percentage. 4% mean 4 divided by 100 mean 0.04. Here your formula is completed. Dividend was supposed to be divided, just saw
अब इसकी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, कैलकुलेटर पे आप क्या लिखेंगे, सेम इसी तरह से जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा कैलकुलेटर में, 4 डिवाइडेड बाय 20, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड प्लस ग्रोथ रेट विच इज़ 0.04। हेयर यू हैव गॉट द आंसर। और अच्छा प्लीज़ एक्सक्यूज मी, दैट डिविडेंड अमाउंट वॉज 1, so put 1 instead of 4, and same you will do in your calculator. Dividend was 1, so here you have got the answer for firm B. If you want to write it as it is, just write times over here. Otherwise what you will do, multiply it with 100 to consider at परसेंटेज। तो ये परसेंटेज के तौर पे लिखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, अदरवाइज़ यही आंसर टाइम्स में लिख दें तो भी ठीक हो जाएगा। फर्म बी इज़ कम्प्लीटेड। नाउ सी व्हाट फर्म सी इज़ सेइंग। अगेन द फार्मूला फॉर व्हाट, ये भी आप याद रखिएगा, रिटेन अर्निंग का फार्मूला चल रहा है और उसके लिए डिविडेंड वुड बी डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स, और ग्रॉस सेल्स को आपने डिवाइड करने के बाद प्लस करना है ग्रोथ रेट को। अब फर्म सी के साथ चलें और वहाँ पर डिविडेंड की अमाउंट देखें, थर्ड डिविडेंड इज़ 2, पुट 2 एंड देन डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स। थर्ड फर्म की जो ग्रॉस सेल्स है उसको चेक कीजिए, दैट इज़ 42.5, ग्रॉस 42.5 सेल है, लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दें। और नाउ यू आर नीडेड टू ऐड ग्रोथ रेट। फर्म सी का ग्रोथ रेट जो है 6% है, सो यू मे राइट 6%, और 6% मीन 6 डिवाइड बाई 100 एंड राइट डाउन 0.06 ओवर हेयर। अब इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंप्लीट हुई तो कैलकुलेटर पे आप क्या लिखेंगे, सेम ब्रैकेट वुड बी ओपनड, where there is blue square please focus upon the line which is above than blue square, वहाँ पर 2 लिखा हुआ है, and you will divide it by 42.5, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस करना है ग्रोथ रेट, वो है 0.06, and in this way you have got 10.70। ओके, अब इसको 10.70 भी कह सकते हैं, 5 आ गया तो राउंड भी किया जा सकता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके ख़ुद राउंड कर लीजिएगा। ये आपके पास आंसर है, एंड यू आर नीडेड टू कैलकुलेट परसेंट। जब इसको एज अ परसेंट आपने शो करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, सो यू हैव गॉट 10.7। ये जो 5 है इसकी वजह से इसको 1 भी किया जा सकता है, 10.71, लेकिन बहरहाल जो एग्जैक्ट आंसर है वो यही है। फर्म सी इज़ कम्प्लीटेड एंड नाउ फोकस अपॉन व्हाट फर्म डी इज़ डूइंग। ऑलराइट, फर्म डी के लिए भी आपको रिटेन्ड अर्निंग चल रही है। रिटेन्ड अर्निंग के लिए फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन यू विल ऐड ग्रोथ रेट। ओके ओके, लेट्स गो फॉर फर्म डी डिविडेंड। हेयर वी हैव फोर्थ फर्म एंड डिविडेंड इज 2.1, राइट डाउन 2.1 over here within brackets. It is needed to divide it with gross sales, और फर्म डी की ग्रॉस सेल्स जो है 19 है, या इशूइंग प्राइस जो है दैट इज़ 19, and next step is to see the growth rate and that growth rate would be added। तो कितना ग्रोथ रेट है यहाँ पर फर्म का, दैट इज़ 2%, सबके साथ परसेंट लगा हुआ है। 2% मीन 2 डिवाइडेड बाई 100, एंड 2 डिवाइडेड बाई 100 मीन 0.02 आप यहाँ लगा दीजिए। सो दिस इज़ योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब आप इसको कैलकुलेटर पे भी यही आपने लिखना है, 2.1 डिवाइडेड बाय 19 ब्रैकेट क्लोज्ड और मल्टीप्लाई बाय 0.02।
अब यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। आप में से कोई कहेगा कि वी हैव रिटन सेम इन द सेकेंड लाइन एंड वी आर राइटिंग द सेम इन थर्ड लाइन, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो वो जो लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा, और अगर सिर्फ यही लिखा रहने देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आंसर आपका कैसे है, इसलिए वैल्यूज़ पहले वहाँ पे पुट हुई हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये सिर्फ एक्सेल का फार्मूला है। एज यू विल जस्ट पुश दिस क्लिक, दिस ब्लू क्लिक, दिस वुड बी वैनिश्ड, दिस वुड बी डिसअपियर्ड, और दोबारा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आंसर कैसे है। दैट इज़ वाई इट इज़ जस्ट एसेंशियल और नेसेसरी टू बी रिटन। तो इस तरह से आपके पास ये फोर्थ फर्म की कैलकुलेशन आ गई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज अ टाइम्स, और इफ़ यू वांट टू गेट द आंसर इन परसेंटेज, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें 100 से। इस तरह से फर्म जो डी है उसकी भी कैलकुलेशन 13.05 आ गई। आप राउंड करके लिख लीजिएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर वर 4 फर्म्स और सबके लिए हमने रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट कर ली है। मेरे साथ रहिएगा। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इसका दूसरा पार्ट है, और सबके लिए यही कैलकुलेशन सबने करनी है। पहला स्टेप ये है कि हम इस फार्मूले को ज़रा शॉर्ट कर लेते हैं। डिविडेंड इज़ नीडेड टू बी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब इसके साथ हम NS लगा देते हैं। नेट सेल्स अब आपको चाहिए, और फिर ऐड आपने ग्रोथ रेट ही करना है एज इट इज़। पहले फर्म ए की सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, और कुछ चीज़ें तो कॉमन है जो उसी के साथ ही चली जाएंगी। डिविडेंड जो फर्स्ट फर्म का है दैट इज़ 2.25, वो आपके पास एज इट इज़ लगा रहेगा। ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं। फर्म ए का डिविडेंड वही रहेगा, सिर्फ सेल चेंज होगी, ग्रोथ रेट चेंज होगा। तो इसका 2.25 तो एज इट इज़ रहेगा जो कि डिविडेंड है। अब डिवाइड आपने सेल्स पे करना है, वो अभी आपके पास नहीं है, ढूंढते हैं उसको, क्योंकि नेट सेल्स चाहिए। और उसमें आपने ऐड करना है ग्रोथ रेट को, और इसका ग्रोथ रेट हम यहाँ से देख लेते हैं, वो 0.08 या 8% है। वो आप लिख लीजिए 0.08 यहाँ पर। ओके, अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ डेफिशिएंट है, दैट इज़ नेट सेल्स। नेट सेल्स के लिए आप इधर आइए, और जो फ्लोटेशन कॉस्ट हमने छोड़ी, अंडर प्राइसिंग छोड़ी है, ये दो चीज़ें हम पहले कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वी वर रिलेटेड विद रिटेन्ड अर्निंग। अब आपको सिंपल ये काम करना है, जो ये ग्रॉस सेल्स इधर दी हुई हैं 50 रुपीज़ की, इसमें आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है इन दो प्राइसेस को, 2 और 1 जो आपको नज़र आ रही है। तो हम साथ में नेट सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेट सेल्स आपकी कैसे निकलेंगी, जब ग्रॉस सेल्स में से आपने दो चीज़ें लेस करनी है, एक अंडर प्राइसिंग और दूसरा आपने इसमें से लेस करना है फ्लोटेशन कॉस्ट को। लिखा रहने देंगे ताकि अगर दोबारा कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पता चल जाए ग्रॉस सेल्स से नेट सेल्स कैसे बनी थी। ओके, नेट सेल्स हमने डिस्कस कर ली है। अब इसकी से नेट सेल्स निकालनी पड़ेगी आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको हम चलें लिख के करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। नेट सेल्स निकालने के लिए फिर दोबारा से एक ब्रैकेट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। टोटल प्राइस आपको नज़र आ रही है यहाँ पर 50 थी, इसी 50 को आपने पिक करना है और यहाँ पर राइट डाउन करें 50, मगर इसके साथ अंडर प्राइसिंग थी और प्राइस अंडर प्राइसिंग 2 और फ्लोटेशन कॉस्ट 1, दोनों को आपने इसमें से माइनस कर देना है, -2 और -1। अब इसको ज़रा प्लीज़ आप गौर से देख लीजिए, ये काम हमने करना है। आपको नेट सेल्स चाहिए, बस फ़र्क ये है, डिविडेंड वही है 2.25, ग्रोथ रेट वही है, जस्ट फोकस अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकालनी है, ग्रॉस सेल्स में से अंडर प्राइसिंग और फ्लोटेशन कॉस्ट वो आपने लेस करनी थी। और आपने क्या किया, यहाँ पर 50 जो है, इधर फोकस कीजिएगा, 50 इज़ योर ओरिजिनल प्राइस और ग्रॉस सेल्स, then you have subtracted your flotation cost which was 1 and underpricing which was 2, so you will get your net sales. All right,
Okay, now try to understand how you will write it on calculator. अगेन ब्रैकेट से स्टार्ट कीजिएगा और 2.25 है और फोकस कहाँ रखना है, जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर वाली लाइन पे चेक करते जाएं. डिवाइड करना है, यू विल ओपन द ब्रैकेट, विल राइट 50, देन -2 एंड देन -1, ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज्ड क्योंकि दो ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं. एंड देन यू विल ऐड ग्रोथ रेट विच वाज 0.08. अब ये इस पर आप ध्यान दें और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हेयर यू हैव गॉट योर आंसर. अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें और अगर आप चाहें कि इसको परसेंटेज में लिखना है तो आप सिंपल इस आंसर को विच यू हैव गॉट जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 100. दिस वे यू विल गेट योर आंसर. और फर्म ए, आप देखिए फर्म बी के साथ आपने जाना है. एंड आई वुड लाइक टू रिपीट द फार्मूला. आपने वही काम करना है. डिविडेंड यू विल टेक अप, इसको डिवाइड करना है नेट सेल्स पर. ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज कर दीजिए एंड देन यू विल ऐड द ग्रोथ रेट. थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं. फर्म बी का, ये फर्म बी है और उसमें डिविडेंड 1 था और ग्रोथ रेट 0.04 था. डिविडेंड वाज 1. अब इसको हमने अभी नेट सेल्स ढूंढ के लगाएंगे और प्लस करना है ग्रोथ रेट फर्म बी का, दैट वाज 0.04 और 4%. 0.04 आप यहाँ पर लगा दें. अब नेट सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है, वो मैंने आपको बताया कि यू विल सब्सट्रैक्ट बोथ फ्लोटेशन और अंडर प्राइसिंग. फर्म बी के लिए देखें, आपके पास जो प्राइस थी दैट वाज 20 और जो दो कॉस्ट गोइंग टू बी सब्सट्रैक्टेड अंडर प्राइसिंग 0.5 है और 1.5. यहीं पर ही आप ब्रैकेट में शो करवा दीजिए. जो नेट सेल प्राइस है वो कैसे निकलेगी. टोटल प्राइस ऑफ द फर्म इज 20 and you are going to subtract 0.5 and 1.5. 0.5 and 1.5 ये दो सेकेंड फर्म की जो कैलकुलेशंस थी उनको आपने पिक किया. 0.5 और 1.5 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ओरिजिनल प्राइस और मार्केट प्राइस वाज 20. इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में आपने लिख लिया. नाउ लेट्स कैलकुलेट विद स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट. यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 20 माइनस 0.5 minus 1.5 brackets closed, then add growth rate which is 0.04. Here you have got the answer for second firm. It is okay if you write like this, or if you want to convert in percentage, answer multiply 100, you will get its percentage answer. For firm B is 9.55. आप इसको राउंड करके 5-6 कर सकते हैं. देन वी विल सी व्हाट फर्म सी इज सेइंग और उसके लिए फॉर्मूला वुड बी सेम. डिविडेंड वुड बी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ब्रैकेट्स क्लोज्ड और यू विल ऐड ग्रोथ रेट इन द आंसर. अब उसके लिए आपके पास ऑलरेडी फर्म सी का कुछ हिस्सा आपने सॉल्व किया हुआ है. आपके पास डिविडेंड यहाँ पर है 2 और वही डिविडेंड आपने यहाँ पर यूज़ करना है सेम विच इज़ 2 और इसको आपने डिवाइड करना है नेट सेल्स पर. वो अभी हमें नहीं पता, बुक से देख के नेट सेल्स बनाते हैं. और ग्रोथ रेट फर्म सी का है 0.06 या 6%. तो जस्ट राइट डाउन हेयर 0.06 जो कि फर्म सी का ग्रोथ रेट था. ओके, अब इसकी नेट सेल्स पता करने के लिए आपको क्या करना है, ग्रॉस सेल्स के अंदर माइनस करना है अंडर प्राइसिंग को और माइनस करना है फ्लोटेशन कॉस्ट को. ओके, अब क्वेश्चन में चलते हैं. फर्म सी की पहले तो मार्केट प्राइस चेक करते हैं. we have market price 42.5. write down over here 42.5
then you are going to subtract अंडर प्राइसिंग ऑफ फर्म सी. अंडर प्राइसिंग यहाँ पर 1 है, -1, एंड देन फ्लोटेशन कॉस्ट और वो है फर्म सी की 2. सब्सट्रैक्ट दिस 2 फ्रॉम ग्रॉस सेल्स. इस तरह से मैथमेटिकल इसका फॉर्मेट कंप्लीट हुआ. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. आपने 2 डिवाइडेड बाय 42.5 ब्रैकेट सॉरी, यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट आपने ओपन करनी है, फिर आप राइट डाउन करेंगे 42.5 -1 -2 ब्रैकेट क्लोज कर दें, सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दें, ऐड ग्रोथ रेट विच इज़ 0.08. इन दिस वे फर्म सी की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने आई है. Okay, check it out what you have done. 2 was your dividend and you have divided it by gross sale 42.5, -1 -2 was underpricing and the second cost, and then you are adding it 0.06 under ये जो second cost थी that was flotation cost. This way you have got the answer. ऐसे भी आंसर ठीक है, या फिर आप अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो just pick this amount, this answer, and multiply it with 100. This way your third answer firm C has been completed. Now let's see what firm C is saying. यहाँ पर भी आपको डिविडेंड को डिवाइड करना है नेट सेल्स पर, और आपको इसमें ऐड करना है ग्रोथ रेट. और इसके लिए फर्म डी जो है, ये फर्म डी थी, इसकी कुछ एंट्रीज़ यहाँ पर हुई हैं. फर्म डी के अंदर 2.1 ग्रोथ रेट डिविडेंड था और ग्रोथ रेट 0.02 था. तो सेम वी विल बी यूजिंग ओवर हेयर. डिविडेंड 2.1 है और इसको डिवाइड करना है नेट सेल्स पर. अभी हमें नहीं पता तो नेट सेल्स ही लिख देते हैं. और फिर यू आर नीडेड टू ऐड ग्रोथ रेट ऑफ फर्म डी. फर्म डी ग्रोथ रेट 0.02, सेम यू हैव पुट ओवर हियर. तो चूँकि हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके थे, उन्हीं से हमने देख लिया. अब वी आर नीडेड टू कैलकुलेट नेट सेल्स, और नेट सेल्स के लिए आपको फर्म डी में जो मार्केट प्राइस उसकी है, वी आर लुकिंग एट दैट. सबसे पहले 19 है, पुट 19 ओवर हेयर. नाउ यू आर नीडेड टू सब्सट्रैक्ट अंडर प्राइसिंग. चौथी फर्म की अंडर प्राइसिंग आप देख रहे हैं 1.3 है और 1.7 उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट है. 1.3 माइनस 1.7. दिस वे यू विल कैलकुलेट योर नेट सेल्स. इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेट कंप्लीट हो गया. अब आपने इसको कैलकुलेशन इसकी करनी है. ब्रैकेट ओपन कीजिए. 2.1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 19 minus 1.3 minus 1.7 bracket closed, and then add 0.02. this way. okay, कोई एरर है यहाँ पर, उसको हम ठीक करते हैं. अच्छा हाँ, ये ब्रैकेट जो डिवाइड है वो नहीं ठीक लगा हुआ. चलिए आपके समझने के लिए आसानी करते हैं. इसमें एक ब्रैकेट नहीं लगी हुई. देखें 3 ब्रैकेट्स है ना, तो इट मस्ट बी 4 ब्रैकेट्स. तो वो 4 ब्रैकेट्स लगा के यू हैव गॉट योर राइट. अगर ऐसे ही लिखना है तो टाइम्स में लिख दीजिए, अदरवाइज जस्ट टेक दिस आंसर, मल्टीप्लाई इट विद 100 and you will get percentage answer 15.125. So this way all firms cost of common stock, cost of retained earning has been calculated. All answers you can match from the book. So this way we have completed our question. This was question number 9.11. मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो इतना आगे वाला पार्ट है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था. क्वेश्चन आपके पास ये वाले नीचे वाले पार्ट्स हैं, इन्हीं को ही आपने सॉल्व करना है. होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. If you have still any query after this much time, you may ask any question. You can text, you can message, you can meet directly, and you can ask your queries.
and we have solved question number 9.11 right now, and we will surely meet again for the solution of any other question. Up till then, please, inshallah, we will meet again. I was willing to say inshallah. So for next and up till next time, हम दोबारा मुलाकात करेंगे. उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.